Deputy Director of Bhaktivedanta for Spiritual Care, Deputy Director of Bhaktivedanta Hospice at Vrindavan, Chief Advisor for Barsana Eye Services, pioneer in developing a curriculum in spiritual care in nursing for nursing students of diploma and degree, Chief Faculty at Bhaktivedanta Institute of Nursing Education, and he has delivered speeches in USA and UK on principle of spiritual care and end-of-life care, and he has been a regular speaker on the TV for the Atma serial, and we know him well as a very deeply learned and also devoted in Barsana and the wonderful holy places. Prabhuji takes many wonderful yatras, and the way he shares, it helps us to get transported to that wonderful abode. So we like to enter that abode by having his time. Let us welcome him while 3 times loudly chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Kadamayam Dadati Swapadantikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Brinda Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude. Hare Krishna, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. My obeisances to all the devotees from NVCC Pune and also ISKCON Pune camp, Radha Kunja Vihari ji, Radha Vrindavan Chandra ji, Jagannath Baladev Subhadra, Sri Sri Gaurnitai, both the places, Sri Venkateshwara Balaji Maharaj. My humble pranams to all these divine lords and the devotees. It is truly a big honor. I can see, looking at the screen, I can see it's truly a big honor. In both the screens, there are so many devotees sitting. And I remember my last year's visit to ISKCON NVCC Pune. I could do Abhishek of Radharani. And the most wonderful thing happened last time. On the Radha Ashtami day, I was just getting ready and trying to come down on time for Abhishek, just before the Abhishek. His Holiness Radhanath Swami Maharaj Gurudev called me from some place in India, South India. He was taking some treatment. And he called me on his own. And you can imagine how thrilled I was. I was absolutely dancing actually. And he called up and told me to come and meet him in GEV for a particular purpose of giving his memories for writing the book of history of Bhaktivedanta Hospital. So it was such a blessing. We have been waiting for that time. We had been waiting for him for almost more than a year and a half to give his time for giving his memories. And he himself called me on the auspicious day of Radha Ashtami. And I was so thrilled when I came to temple. I was just like bubbling with happiness.
And then I also informed him that Maharaj, I'm about to go and speak on Radharani's Radhashtami lecture. So he said, all my blessings are with you. It's also wonderful actually. So about ISKCON, NVCC and Kunja Bihari ji, I've got such sweet memories. And I wish to tell especially the devotees of ISKCON, Radha Kunja Bihari ji, I'm extremely happy to have the fortune of visiting NVCC, Radha Vrindavan Chandra. But my heart beats for Kunja Bihari ji regularly, because we like in a Bhaktivedanta hospital, now we have 12 hospitals. We had a small polyclinic before. And before that, we used to go to villages in Madhvanand Prabhu's house, to do medical camps. So when we have such a big hospital and new building is coming and Barsana is developing and so many things are happening, we can never forget that route from where we began, that small clinic from where we began. So similarly, by the hard work of His Grace Radheshyam Prabhu and so many devotees who have worked hard in Grihastha community, brahmacharis, and but we still cannot forget the historical aspect of Radha Kunja Bihari ji, who were very nice, humble beginning, the story of Venkateshwara, amazing. So this year I had actually booked with them for myself only. I will like to come to Kunja Bihari ji and give Radhashtami lectures. But Radharani is very merciful and she has opened the channels to everybody in separation. It is a very wonderful thing. We all may feel Corona is bad and so many things are happening, but Corona is very good. Corona has given us so much of extraordinary, unimaginable, inconceivable opportunities, which we could never imagine before that we would do this. I could never imagine that I can speak to Radha Kunja Bihari congregation close by there and ISKCON NVCC congregation, and also along with that so many people I know on the screen. There are people from New Zealand and India, many places and abroad. So it's a very thrilling experience, that Corona has offered us. So in essence, everything that happens, however painful, however miserable it may appear to be to our senses, but still every single thing is ultimately meant for the ultimate welfare of those who love God and also for those who don't love God. But to those who love God, these welfare will be revealed as welfare. And to those who don't love God, the welfare will be there, but they will not understand how it is welfare. So we have that fortune. As per Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamrita, he said, all the worst things in life will turn out to be good for those who love God, who love Radha and Krishna. So we happen to be in the category of people who are attempting at least to love Radha and Krishna, to keep the love of Radha and Krishna as the prime goal of our life. So for us, all the welfare, the secret welfare that is going to happen will be revealed, is being revealed and also will be revealed in future. I want to tell you, share with you that in the middle of the Corona crisis, you all know that we are a hospital, and a very prominent hospital which is 22-year-old, giving services to our area and all over the world. So there were very intense moments, and in between the intense moments, His Holiness Radhanath Swami Maharaj called. We called him for reporting and taking guidance and mercy and blessings. So he said that Corona will make Bhaktivedanta Hospital shine much more in future. So that gave us so much hope. So you also may feel, oh, ISKCON NVCC is closed, Kunja Bihari temple is closed, nobody can come there. So what's going to happen? There is financial crisis. There's so many other crises coming up. But it's all for good, and it's going to really, it's a milestone towards the vision of
Chaitanya Mahaprabhu, that is Prithivite Ache Sarva Nagaradigram Sarvatra Prachara Haiba Maradam. This particular vision has to be fulfilled, and whatever needful has to be done. So Gauranga Mahaprabhu is doing the needful, so that majority, I would not say everybody, but majority of people in the material world, in the Western world, have changed their lifestyle habits. They are coming to natural lifestyle, kind of becoming purer than before. So it is a very good fertile ground for preaching, and everybody is also becoming spiritual. Everybody is asking what is death, what is life, what is all about. So spirituality inclination is increasing day by day in the world because of Corona, and the post-Corona world will not be the same as pre-Corona world. So all of us need to now be on our guard. Tighten your seat belts or kamar pattas, and be ready to, give the mercy of Radha and Krishna to everybody in the world in much more multiple levels, and inconceivable, unimaginable opportunities will be available through these situations and through the opportunities that have come up in these situations. So my humble obeisances to all of you repeatedly, my Dandvat Pranams to all of you, and I seek blessings from all of you to help me to speak, because who can speak on Radharani? Nobody can claim that he can speak. We can just share information, and that too, the information is given to us or shared with us by the mercy of pure devotees, by the mercy of saintly personalities, by the mercy of sadhus, by the mercy of Brijbasis. It is only because of the mercy of the saintly personalities one can develop a little taste for Sri Krishna, and that taste also will be developed in us by the mercy of Radharani, and by the mercy of Radharani only will come through the devotees of Radharani. There is no question of achieving the mercy on our own, only it is coming through the devotees of Radharani. I remember in 1986, the first time when Radhanath Swami Maharaj took the yatra to Vrindavan, and Prabhuji, Hindi mein bol sakte hain kya, Prabhuji? Yes. If you can speak in Hindi, more congratulations. Sorry, I forgot. Okay. I'm very sorry. तो मुझे याद है कि जब हम सबसे पहले राधा रानी के धाम में गए थे 1986 में, वो राधा गोपीनाथ मंदिर के इतिहास की सबसे पहली यात्रा थी, और उसमें केवल 22 जन थे, जो आपको अभी सुनकर केवल विश्वास ही करना होगा, लेकिन विश्वास करना मुश्किल है उस बात पर। तो उसमें से भी बहुत ज्यादा अधिकतर डॉक्टर्स थे जो अभी भक्ति विधान में रहते हैं। तो उस यात्रा में मुझे बिल्कुल याद है, जब हम बरसाना गए थे, तो वो जो परिवार है वहां का बरसाने का, उनसे प्रथम परिचय हुआ था। ये सब मैं जानबूझ के आपको बताना चाहता हूँ कि राधा रानी के विषय में सुनने के लिए थोड़ी सी हमारी तैयारी भी होना जरूरी है। बिना तैयारी के, जैसे बिना प्लेटफॉर्म बनाए अगर डांस करेंगे तो डांस वाले भी गिर सकते हैं और स्टेज भी टूट सकता है, इसलिए पहला स्टेज बनाना जरूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सबसे पहले 1986 में राधा रानी के गांव गए थे, पूरा सब कुछ घूम के वृंदावन रहे, वृंदावन से फिर नंदगांव और फिर गोवर्धन परिक्रमा किया, उसके बाद राधा रानी में लास्ट गए थे बरसाना में। तो उस जगह पर जो घर है उसको कहते हैं रस मंदिर, और उसमें हम लोग 4 बजे के करीब प्रवेश किए। और आश्चर्य की बात यह है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जैसे उनके जर्नी होम, वो जो अनोखा प्रवास, अनोखी यात्रा और त्रिसार्थ पथिक जैसे किताबें हैं जर्नी होम, तो इसमें लिखा है कि वो 71 में जो वहां पर 6 महीना रुके थे, और 6 महीना वहां पर रुक के उनको अपने जीवन की जो खोज थी, जो उनका अनुसंधान था, उसके इसमें यश प्राप्त हो गया। जो भी उनको खोजना था वो उनको प्राप्त हो गया। तो उसके पश्चात वो वृंदावन आए, वहां से प्रभुपाद की मुलाकात हुई, वहां से वो अमेरिका गए और वहां पर उनको न्यू वृंदावन में ही रहने का आदेश दिया गया। तो न्यू वृंदावन में उनको कहा गया कि अभी आपको इसके बाद कभी भी बरसाना वृंदावन जाने को नहीं मिलेगा, आपको यही रहना होगा, क्योंकि वहां उस जमाने में ऐसी स्थिति थी कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में अगर कोई फुल टाइम आता है
तो उस मंदिर में जहां पर वो फुल टाइम है, वहां के जो अथॉरिटीज हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट और कमांडर, उनके ही आज्ञा में रहना है, उनकी आज्ञा पालन करना ही प्रभुपाद जी की आज्ञा है। वो जो कहेंगे वैसे ही रहना है और पालन करना है। तो अथॉरिटी ने कहा कि इसके आगे आप वृंदावन कभी जा नहीं पाओगे। तो 17 साल के 16 साल के बाद 1986 में परम पूज्य राधानाथ महाराज जी को मुंबई का चार्ज दिया गया। तभी मुंबई में कुछ था भी नहीं, 2 कमरे मिले थे। उस समय में फुल टाइम ज्वाइन हो गया था। और उसी के बाद में उसी उसी 1-2 महीने के बाद में ये यात्रा निकली थी। तो राधानाथ स्वामी महाराज भी 16 साल के बहुत ही विकट विरह के बाद उस जगह पहुंचे थे जहां पर उनका 6 महीने उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशनल डेज, फॉर्मेटिव डेज वहां पर उन्होंने गुजारे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब महाराज जी ने उस घर में प्रवेश किया जहां पर वो माधुकरी करते थे, रोज नीचे आके पानी लेके जाते थे, पहाड़ पर रहते थे और सभी परिवारों के साथ रहते थे। जब हमने प्रवेश किया तो उस समय 4 बजे का समय था और उस घर के जो ब्रजवासी परिवार थे वो सब विश्राम कर रहे थे। उनकी दिन की सेवा, सबको प्रसाद बांटते हैं वो दिन रात, अभी भी बांटते हैं, उस समय भी बांटते थे। तो वो उनका दोपहर का भोजन कार्यक्रम समाप्त होके 12-1 बजे सबको वितरण करके धो के सब कुछ वो सो रहे थे। और अचानक हम लोग प्रवेश किए तो उन्होंने, वो भी जग गए और परम पूज्य राधानाथ महाराज को जब उन्होंने देखा तो वो इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने आनंदी हो गए कि उन्होंने तुरंत उनका उनका ना, किसी भी भक्त को देखने के बाद में उनका प्रथम रिएक्शन क्या होता है वो हम सब लोगों को समझना जरूरी है। सर्वप्रथम जो रिएक्शन है वो है रसोई में जाना, चूल्हा जलाना और रोटी बनाना आरंभ करना। हमें भी हमारे मंदिरों में ये जो कल्चर है वो अडॉप्ट करना चाहिए। हम लोग करते भी हैं, मैं जानता हूं इस बात को। पहले जैसे ही भक्त आएंगे ना, उनको पूछना है प्रसाद लेंगे क्या, लंच का समय है, ब्रेकफास्ट का समय है, कुछ समय भी नहीं होगा तो आप प्रसाद लेना चाहेंगे, आप तैयार हो जाइए, प्रसाद रेडी हो जाएगा। तो ये हम लोग 22 लोग बिना बुलाए, उस समय मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, कुछ संदेश देने का कुछ चांस नहीं था। हम तो पहली ही बार वृंदावन जा रहे थे, हम किसी को जानते नहीं थे। महाराज जी एक ही व्यक्ति थे जो वृंदावन में किसी को जानते थे, वो हमको ले जा रहे थे। तो कोई संदेश देने का सवाल ही नहीं था, ऐसे ही प्रवेश कर दिए, जैसे मराठी हिंदी में बोलते हैं ना, घुस गए। प्रवेश कर दिया। वो लोग मुस्कुराए, स्वागत किया और सीधे किचन में गए और हम लोग भी उधर ही घुस गए और ऐसी रोटियां चूल्हे पर बनाना आरंभ किया। हाँ, और हम लोग ने, हमारी यात्रा की विशेषता थी उस समय कि कोई प्रसाद का इंतजाम नहीं होता था। मीनिंग ऐसा नहीं कि भाई भी बरसाना जाएंगे तो वो घर में प्रसाद मिलेगा, या नंदगांव जाएंगे तो यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, उधर जाएंगे तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है। सबको आइडिया होता है कि प्रसाद मिलेगा, लेकिन वो यात्रा ऐसी थी कि उसमें कोई प्रसाद का इंतजाम नहीं था। जो जहां मिलेगा वैसे उसको पाना है। वो ब्रेकफास्ट का टाइम आएगा तो ब्रेकफास्ट मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है। तो हम लोग, तात्पर्य क्या है कि हम लोग सब लोग भूखे थे, बहुत बढ़िया से भूखे थे। लंच नहीं हुआ था, ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही कुछ फल पाया था, तो अत्यंत भूखे थे। तो जैसे ही देखो, अभी सब लोग, हम लोग 19-20 साल के थे, एकदम नौजवान, जोरदार जठराग्नि वाले, हाँ, ऐसे भूखे थे। और जैसे गरम गरम रोटी, हाथ की रोटी, हाँ, विशेषता है वो बरसाने की, ब्रज की रोटी, वो भी हाथ से बनाई हुई। वो रोटी बनाना आरंभ हो गया, सब्जी वब्जी सब खत्म हो गई थी, तो उन्होंने अपने 5-6 बड़े बड़े डब्बे निकाले और सारे अचार जो है वो सबको सर्विस करना आरंभ किया। और फिर दही निकाला, फिर बोरा निकाला, जो भी था ऐसा निकाल के शुरू किया। और कम से कम 1-1.5 घंटा तक वो केवल खाने का ही कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि गरम गरम रोटी आती तो फिर उसका 2 टुकड़े करके एक महाराज को, बाकी सब लोगों को, ऐसे करते करते सारे परिवार लग गए। और क्या बताऊं, वो अनुभव था ना, वो पहली बार जब बरसाना हम गए थे, वो अनुभव जो था कि आदरातिथ्य क्या होता है, ब्रजवासी क्या होता है, समर्पण क्या होता है, और आने वाले लोगों को संतुष्ट कैसे करना है, ये सब हमने अपने सबसे पहले अनुभव में ये अनुभव किया, सबसे पहले इंटरेक्शन में अनुभव किया। ऐसा हम लोग गदगद हो गए थे ना कि ऐसा, सच काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ऐसा आदरातिथ्य, वो भी अनजान लोगों के लिए। कोई पहचानता नहीं है, कोई उसमें एक ही व्यक्ति पहचान वाला है जो राधानाथ स्वामी महाराज है।
और उनके साथ जो भी बंदे आए वो सबको इतना संतुष्ट कराया कि पूरा पेट भर, अभी नहीं चाहिए इतना कहने तक खिलाया उन्होंने। उसके बाद में राधानाथ महाराज, हम लोग एक सत्संग में गए, हाँ, उसके आगे, और उस सत्संग में जो ब्रजवासियों ने भजन गाए थे, वो भजन 1986 दिसंबर की बात है ये, वो जो भजन हमने गाए थे उससे राधा रानी के प्रति ऐसा एक अनोखा अद्भुत आकर्षण निर्माण हुआ, ऐसे एक तार छिड़ गई हृदय की जो आज तक छिड़ी हुई है। मुझे अभी भी वो जो अनुभव है ना, अभी मुझे तीव्रता से याद है कि कैसे हम लोग ना बहुत बार सुनते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, त्रिगुण से पार हो जा, निस्त्रैगुण्य हो जा, हाँ? और द्वंद्व से मुक्त हो जा, सत्व में स्थित हो जा, तब जाके तू आत्मवान बनेगा और मेरी प्राप्ति करेगा। कितना सुंदर लगता है, अच्छा सुंदर लगता है। लेकिन ये निस्त्रैगुण्य होना मतलब क्या है? वो नोज नोबडी नोज कि ये निस्त्रैगुण्य कैसे होना है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ हृदय से, हाँ, एकदम प्रामाणिकता से कहता हूँ कि उस समय हम लोग सब निस्त्रैगुण्य हो गए थे, त्रिगुण के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। हम कौन है, हाँ, हमारा शरीर पुरुष का है कि शरीर का है, हम इंडियन है कि फॉरेनर है, ये सब कुछ हम भूल चुके थे। हम कहाँ पर है ये भी भूल चुके थे, लेकिन हम बरसाने में थे, उस चेतना के साथ संपर्क कर रहे थे। वो चेतना जो है, वो चेतना इतनी तीव्र थी और इतनी उत्कट थी, इतनी भाव विभोर करने वाली थी कि मुझे याद है मेरे विषय में, क्योंकि मैं मेरी चेतना को अनुभव करके बता सकता हूँ, बाकी लोगों का भी अनुभव यही रहा है, लेकिन मैं कुछ 1.5 घंटे के लिए इस दुनिया में नहीं था और इतना सचेतन था, इतना कॉन्शियस था मैं। और मुझे अभी भी वो अनुभव है कि वो शरीर की जो चेतना थी, शरीर का जो क्या कहते हैं उसको अनुभूति थी, वो नष्ट हो चुकी थी। और आत्मिक स्तर पर अस्तित्व क्या होता है उसका अनुभव उस दिन किया, वो भी 10 मिनट के लिए नहीं, 1.5 घंटे के लिए चलता रहा ये। और ऐसा लग रहा था कि ये घटना, ये सत्संग समाप्त ही ना हो, ऐसे ही समय रुक जाए और यही दिव्य आनंद हर समय हर क्षण मिलता रहे। तो इसमें मैं आपको कहना ही चाहता हूं कि ब्रजवासी संत की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से ही ये संभव हुआ। अगर गुरुदेव और ब्रजवासी वहां पर नहीं संपर्क होता तो ये जो अवस्था थी, अनोखी अवस्था जो जिसके लिए हम लोग हमेशा लालायित रहते हैं, वो अवस्था में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बरसाना क्या है? बरसाना आज देखेंगे तो क्या है, देहात है, उधर कुछ फैसिलिटी नहीं है, रास्ते नहीं है, आज भी स्थिति है। उस समय तो बहुत ज्यादा खराब थी, कोई रिक्शा नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, तो ऐसे स्थान के लिए आकर्षण पैदा क्यों होगा मन में? तो ठीक है, गांव में घूम के आए, उसमें क्या है इतना। लेकिन वो गांव क्या है? महारानी को गांव, जय जय श्री राधे, वृषभानु दुलारी को गांव, जय जय श्री राधे। ये गाते भी तो समझता नहीं था, लेकिन संत की कृपा से ही ये सारे रहस्य खुल जाते हैं। जो भी दिव्यता के स्तर पर जितने भी रहस्य हैं, वो सारे रहस्य जो है ना, एक बहुत विशाल तिजोरी में छुपा के रखे हुए हैं, जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। और ये सारी जो तिजोरी है, अमर्याद, असीम, अनंत तिजोरी जो है, वो दिव्य रहस्यों से भरी हुई है। उसकी चाबी जो है वो राधा और कृष्ण ने अपने संतों के हाथ में दे दी। और संत जब कृपा करेंगे तब जाकर ये भांडार जो है ना, वो देखो जैसे भांडार खुल रहा है, देखो राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन खुल रहा है। ये कोई भक्त खोलेगा ना जाके तो ये आपको दर्शन होगा, नहीं तो कैसे हो सकता है दर्शन? जब तक बंद है तो बंद है। कब यात्री सब दर्शनार्थी खड़े हैं, बोले कब खुल रहा है, कब खुल रहा है? बोले अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी भोग लग रहे हैं, अभी भोग आए हैं। हाँ? तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? जस्ट वेटिंग। क्या कर सकते हैं? जस्ट रुकना पड़ेगा हमको। उसी तरह से जब तक संत लोग वो पर्दा नहीं खोलेंगे, वो चाबी नहीं लगाएंगे, तब तक ये राधा रानी, ये श्री कृष्ण, ये श्याम सुंदर जी, ये वृंदावन धाम, ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड, ये गिरि गोवर्धन, ये जमुना जी, ये भांडीर वन, ये सब कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। अरे ब्रह्मा तक को नहीं पता चला। जब ब्रह्मा जी वो भाव लेकर आए थे कि मैं परीक्षा करूंगा कृष्ण की, वो वृंदावन में ही थे उस समय।
वो वृंदावन में कृष्ण को ही देख रहे थे, ग्वाल वालों को ही देख रहे थे, सबका खेल देख रहे थे, सबका खाना पीना देख रहे थे, अनोखी लीलाओं का दर्शन कर रहे थे, लेकिन तब तक कृपा नहीं हुई थी उनके ऊपर, तो कुछ नहीं देख पाए, वो उल्टा परीक्षा ही करते रहे। उसके बाद में जब कृपा हुई तब जाकर ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उनको हर एक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष के समान नजर आया, हर एक जीव को जीवन मुक्त जीव का दर्शन किया, पूरे वृंदावन धाम का दिव्यत्व का दर्शन हुआ, हर गाय, हर मोर, हर पेड़, हर व्यक्ति वहां का चिन्मय व्यक्ति है, उसका हर एक रज का कण चिन्मय है। ये सब जो वर्णन वर्णन सुनते हैं ना हम, श्रिया कांता कांता कल्पतरवो द्रुमा भूमि वृंदावनम, वो जो जो हम लोग गाते हैं, उसके एंड में जो वृंदावन के गोलोक धाम का वर्णन है, वैसे ही साक्षात दर्शन तब हुआ जब कृपा हुई। तो बिना कृपा के श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करना ये एक कपोल कल्पना है। इट्स लाइक अ फूल्स पैराडाइज, जस्ट टू थिंक लाइक दैट कि मैं जाऊंगा वृंदावन धाम के आनंद का अनुभव करूंगा, इम्पॉसिबल है। बिना संत की कृपा से, बिना शुद्ध भक्त की कृपा से ये दरवाजे किसी के लिए खुल नहीं सकते। चाहे 50 बार 100 बार जाओ, वहां पर कपड़ा बेचो, वहां पर डिवोशनल आइटम का बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको चप्पा चप्पा पता होगा हर गली वृंदावन की और बरसाने की, नंदगांव की, लेकिन ये रहस्य भेद तभी तक नहीं होगा जब तक संत नहीं कृपा करेंगे। ब्रह्मा क्या कहे आप, मैं श्लोक बताऊंगा आपको। ब्रह्मा जी वो स्वयं ब्रह्मा है, साक्षात विष्णु के नाभि से जन्म हुआ है उनका, उनके माता भी नहीं है, स्वयं भू ऐसे दिव्य जीव है वो 4 दिमाग है उनको, सारा ज्ञान भगवान की दया से ठूस ठूस के भरा हुआ है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया, ऐसे ब्रह्मा जी है, वो विशेष विशेष विशेषतम जीव है। वो भी जब एक गलत धारणा से वृंदावन में आए तो वो वृंदावन धाम का कुछ दर्शन नहीं हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी धारणा और भावना एकदम वास्तविक और सत्य रूप में आ गई, उनका जो भी भ्रम था वो निकल गया, तब उनको दिव्य दर्शन वृंदावन के दर्शन हुए। उसी तरह से हम सब लोग बरसाना जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, जावट जाएंगे, हर एक जगह जाएंगे, कोकिलावन जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक संत की कृपा नहीं होगी। संत के द्वारा चक्षुर उन्मिलितम येन, जब संत के द्वारा जब चक्षु हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं तभी ये दिव्य धाम के दर्शन होते हैं। और उसमें भी कैसा है, आप मथुरा जा सकते हो, इतना कठिनाई नहीं वहां पर होगी आपको। फिर आप वृंदावन जा सकते हो, थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि वृंदावन भगवान का बड़ा प्रिय वन है, लेकिन वृंदावन से आगे जाने के लिए बड़ा विशेष कृपा की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृपा में भी अंतर होता है ना, कृपा 1, कृपा 2, कृपा 3, कृपा 4। कृपा 1 से एंट्री मथुरा, कृपा 2 से वृंदावन, कृपा 3 गोवर्धन, और कृपा 4 जो है वो आपको बरसाने पहुंचाएगी श्री जी के चरणों तक। तो हर प्रकार की कृपा एक जैसे नहीं होती है। आप अभी मंदिर में आएंगे तो हर व्यक्ति की पहचान होगी, तो आपको किसी की पहचान नहीं होगी तो आपको खिचड़ी मिलेगी दरवाजे पर, एक दोना लेकर। थोड़े आप जानकारी होगी तो आपको प्रसादम हॉल में ब्रेकफास्ट मिलेगा, और ज्यादा किसी की जानकारी होगी तो आपको गर्भगृह का अंदर का जो महाप्रसाद है वो मिलेगा वो भी राधाष्टमी के समय का मिलेगा, जब बाद में भी आएंगे तो आपको कोई निकाल के देगा। तो ये कृपा में अंतर होता है कि नहीं? हाँ, कृपा में अंतर तो होता ही है। हर एक कृपा समान नहीं होती है। मंदिर में प्रवेश करेंगे तो केवल खिचड़ी खा के चले जाएंगे, लेकिन कोई विशेष भक्त की विशेष कृपा होगी, कोई संबंध होगा आपका पुराना प्रेम का, कोई आदान प्रदान होगा पुराने वाला, तो वो आपको कहेगा प्रभु जी आइए, आपके लिए मैंने राधाष्टमी का महाप्रसाद निकाल के रखा। फिर वो कहेगा आ जाओ राधाष्टमी का अभिषेक होने वाला है, आप अंदर आके अभिषेक भी कर सकते हो। तो ये कृपा के स्तर होते हैं, और कृपा भी कैसे होती है? अनलिमिटेड होती है। कृपा इज ऑल्सो अनलिमिटेड, इट इज नॉट लिमिटेड। तो बिना कृपा के ये सब कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर हम समझेंगे हम साधना कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, एकादशी को 64 राउंड करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, ये साधना के बल पर हम राधा रानी और कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, ये सोचना एकदम गलत है। हम अपने साधना पर निर्भर होकर राधा और कृष्ण को समझ सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक चींटी अगर अपने पूर्ण आरोग्य में और सर्वोत्तम बल में रहेगी और वो सोचेगी कि मैं भी हाथी को डिफीट करूंगी, ये कितना असंभव है। वैसा ही हमारी साधना अगर परिपूर्ण भी होगी, हम साधना में परिपूर्ण हो जाएंगे,
तो उस बल पर हम कृष्ण को, राधा रानी को समझेंगे, वैसा ही ये भ्रम है। तो अभी मैं एक श्लोक पढ़ूंगा आपको कि कैसे हमें अपने चेतना की तैयारी करनी होगी अगर हमें राधाष्टमी के दिन राधा रानी की सही कृपा अगर प्राप्त करनी है, तो कैसे हमको अपनी तैयारी करनी है। तो ये ग्रंथ है राधा रस सुधा निधि, और प्रबोधानंद जी सरस्वती महाराज ने इसको लिखा है। और ये प्रबोधानंद जी सरस्वती महाराज वेंकट भट्ट के भाई थे, श्रीरंगम में थे, और रंगनाथ जी के भक्त थे, ऐश्वर्य भाव में भक्त थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की उनकर कृपा हुई, 4 महीने चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में निवास किया, और रात भर 4 महीने यानी 120 दिन कम से कम उन्होंने उनको कृष्ण लीला सुनाई, वो भी प्रेम से, माधुर्य से भरी हुई। तो उनके हृदय में इतना परिवर्तन हुआ कि श्री रंगनाथ जी के भक्त होने के बावजूद भी वो वृंदावन में आए और एकदम मधुर रसिक भक्त बने, और वृंदावन के एक फैनेटिक भक्त बने। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है राधा रस सुधा निधि, यानी राधा जी के जो प्रेम का रस है, उसका जो अमृत है, उसका सागर है ये, जो उन्होंने वृंदावन महिमामृत और इस ग्रंथ में देने का प्रयास किया है। तो तीसरा श्लोक जो है वो कहते हैं कि ब्रह्मेश्वरादि सुधुरुः पदारविंद श्रीमद पराग परमाम्भुत वैभवायः सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्द्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। वृषभानु महाराज को हमारा, उनके गौरव को हमारा बार बार दंडवत प्रणाम है। ब्रह्मा शिव आदि अनंत देवता भी उनके चरणों पर बसा हुआ फूल का एक कण भी, पराग भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राधा रानी की जो कृपा भरी नजर है वो सभी प्रकार के अमृतों का सब पर वर्षाव करती है। अगला श्लोक बहुत समर्पक श्लोक है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मरामि, तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मरामि। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। मैं श्रीमती राधा रानी के चरणों के रज पर चिंतन करता हूं, मेरा ध्यान करता हूं। जो चरण रज ब्रह्मा, शंकर, शुकदेव, नारद मुनि, भीष्म आदि महान महान संत समुदायों को भी प्राप्त नहीं होता है। ये रज जो है, ये रज जिसमें अनंत शक्ति समाई हुई है, ये रज जो एक ही क्षण में, एट वंस, तत्क्षण परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान को राधा रानी का बहुत ही नम्र निम्न सेवक बना देता है। बहुत मधुर मधुर बातें कही हैं कि ब्रह्मा, मैंने पहले ही बताया कि वो स्वयंभू हैं, और उनका जन्म जो है वो उसकी तुलना कोई भी जीव नहीं कर सकता है, जिस प्रकार से वो उनका जन्म हुआ है। फिर उनके भ्रुकुटी मध्य से शिव जी का जन्म हुआ है। आप जानते हैं शिव जी महादेव के रूप में प्रसिद्ध हैं, और यहाँ तक कि उनकी महिमा इतनी है शिव जी की कि आज सोमवार का दिन है, हमको शिव जी का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तो महादेव होने के नाते स्वयं ब्रह्मा भी उनका पूजन करते हैं। कई प्रकार में भागवत में ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी उनके पिता और परम प्रपितामह होने के बावजूद भी अपने पुत्र शिव जी को पूजन करते हैं, उनको कई बार मनाते हैं, उनके कई बार उनको विनती करते हैं, सभी देवताओं के साथ उनका पूजन करते हैं। शुकदेव जी स्वयं राधा रानी के तोता हैं, हाँ, लीला शुक। आप जानते हैं उनके द्वारा ही श्रीमद् भागवत का बहुत जो प्रसिद्ध जो कथन है वो हुआ था। नारद मुनि जो शुकदेव जी के गुरु हैं, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी का और सबका आशीर्वाद प्राप्त करके, राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, सबको भगवान के प्रेम का संदेश देते रहते हैं, राधिका रमन का गुणगान करते रहते हैं। भीष्मदेव महाजनों में से एक है, हाँ, अष्टवसुओं में से एक थे वो, और उनके द्वारा संप्रदाय का भी आरंभ होता है अन्य युगों में, और सबसे महान व्यक्ति है वो, आदर्श व्यक्तिमत्व थे द्वापर युग के। और ऐसे अनंत संतों की गिनती यहाँ पर की गई है,
होस्ट ऑफ ग्रेट सेंट्स, ऐसे कहा गया है। हाँ? आलक्षितो न सहसा, इन लोगों को भी कभी राधा रानी का दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन तो छोड़ ही दो, इन लोगों को भी राधा रानी के चरण के दर्शन नहीं हो सकते हैं। चरण को भी छोड़ दो, राधा रानी के चरण को लगे हुए जो रजक कण है, उनमें से एक कण का भी दर्शन नहीं हो सकता। और आगे क्या लिखा है कि ये चरण, आगे लिखा है कि सद्यो वशीकरण चूर्णम। वशीकरण चूर्णम का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपने वश में करना होता है। तो हमारे भारत में क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ है। हमारे भारत में क्या नहीं है, हर प्रकार के विद्याएं हमारे भारत में है। तो उसमें एक विद्या होती है तंत्र मंत्र की। वो तंत्र मंत्र जो है उसे वशीकरण मंत्र भी होता है। वो वशीकरण समझो, किसी को चाहना है या पति के रूप में प्राप्त करना है या पत्नी के रूप में प्राप्त करना है, तो वो ऐसे अभी तो अवेलेबल नहीं है ज्यादा, लेकिन पहले ऐसे हुआ करते थे तंत्रिक मंत्रिक, जो करके उस व्यक्ति को वश में करते थे और उस व्यक्ति के लिए पागल जैसा हो जाता था, जिसका कोई संबंध नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उस पर वो वशीकरण कर दिया एक बार, तो वो वशीकरण जिस पर हुआ है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति पूरा मोहित हो जाता है, एकदम पागल जैसा व्यवहार करता है कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी या जी नहीं पाऊंगा। तो उसको कहते हैं वश में करना, वशीकरण विद्या कहते हैं उसको। तो ये वशीकरण जो है वो अभी कृष्ण जो है उनको पाना बहुत मुश्किल है। गोपियां भी जानती है इस बात को। ये कृष्ण को जो पकड़ में लाना बहुत मुश्किल है, वो किसी के पकड़ में नहीं आते। वो इतने स्वतंत्र हैं, हाँ, स्वतंत्र भगवान, आराध्य भगवान, किसी के पकड़ में नहीं आते। और गोपियां चाहती है कि वो हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं, लेकिन नहीं जानते वो। लेकिन एक बार उनको ये पता चला कि राधा रानी के चरण के रज कण जब कृष्ण के सर पर लगाएंगे, तो जो व्यक्ति सर पर लगा रहा है उसके वो वश में हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, उसी के हो जाते हैं। जो कहेगा वैसे करेंगे, जो एकदम टोटली अनियंत्रित है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो रजक कण राधा रानी के चरणों का उन पर लगाएंगे तो वो उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। तो गोपियों ने रहस्य जान लिया था। तो इसलिए कहा गया है कि इस रज में, राधा रानी के चरणों के रज में अनंत रहस्य, अनंत शक्ति, अनंत आशीर्वाद भरे हुए हैं, अनंत सिद्धियों के पर्वत है उनके चरणों में। उनके चरण जो है वो आश्रय विग्रह है, आश्रय स्थान है। उनके चरणों में एक महल का चिन्ह भी है, जो इस तत्व को सिद्ध करता है कि वो आश्रय स्थान है। वो जितने भी जीव, कितने भी पतित हों, वह सबको आश्रय देने में समर्थ है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी उनके ही चरण में आश्रय लेते हैं। सारी देवी देवताएं, ऋषि मुनि, संतगण, योगी जन, ध्यानी जन, सभी लोग उन्हीं के चरणों का आश्रय लेते हैं, या कम से कम तमन्ना करते हैं कि उनके चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाए। तो तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मरामि, चरण रेणुम अनुस्मरामि। अनुस्मरण का मतलब है, एक होता है स्मरण, एक होता है अनुस्मरण। यानी बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही गहराई से मैं इस राधा रानी के चरण पर, उसके रजक कण पर ध्यान करना चाहता हूँ। कितने सुंदर विचार है ये, कितना सुंदर विचार है। एक होता है पूर्ण व्यक्ति, दूसरा होता है उसकी व्यक्ति के चरण, और तीसरा होता है वो चरण का लोगे हुए रजक कण, हाँ, उस चरण को स्पर्श की हुई भूमि। तो ये अनुस्मरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं वहां पर एक पर्वत बनकर रह रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। जो सृष्टि के, ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक हैं, सारे अधिकार, सारा निर्माण उनके हाथ में है, सारे जीव उनके द्वारा इंजीनियर की जाते हैं, उनका शरीर उनके द्वारा बनाया जाता है, सारे जीवों का जो कर्मों का खेल है वो उनके नियंत्रण में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अमल में आता है। वो सारे देवताएं उनके निर्देश में काम करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के निर्देश में यमराज काम करते हैं, सूर्य देव काम करते हैं, चंद्र देवता काम करते हैं, वरुण देवता, सारी शक्तियां उनके निर्देश में काम करती हैं। ऐसे सर्वोच्च पद पर विराजमान सर्वोत्तम अधिकारी, जिनमें सारी शक्ति एकत्र हो गई है ब्रह्मांड को चलाने की, कृष्ण के द्वारा वो शक्तियां आविष्ट हैं। ऐसे टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, सर्वोत्तम व्यक्तिमत्व, प्रथम नागरिक ऑफ ब्रह्मांड, वो क्या कर रहे हैं? वो बरसाने में पर्वत बने हुए हैं।
बरसाने में पर्वत बनना मतलब क्या? पत्थर बनना मतलब क्या? कोई स्थान ही नहीं है, मिस्टर नोबडी। उस पर कोई टट्टी पेशाब भी कर सकता है, अपने गंदे पैर लेकर चल भी सकता है, सारी गंदगी फैला सकता है, जो कूड़ा कूड़ा कचरा है वो फेंक सकता है। और अनंत लोग उस पर जाएंगे तो पैर से ही जाएंगे, कोई हवा में उड़कर नहीं जाएगा। मतलब कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं, कुछ भी नहीं। यक कश्चित और तुच्छ बनकर रहना पड़ेगा। एक पत्थर बनोगे तो, ये भी तो पहाड़ बने। एक पत्थर रहेगा तो एक ही पैर, आधा पैर पड़ेगा उसके। पहाड़ रहेगा तो अनंत पैर उस पर पड़ेंगे और अनंत बार भी पैर पड़ेंगे उन पर। ऐसे ब्रह्मा जी बरसाने में, राधा रानी के धाम में, राधा रानी के राजधानी में पत्थर बन के पड़े हैं, क्योंकि वो राधा रानी और कृष्ण और गोपियों के चरण के रज चाहते हैं। तो उनको भी अगर राधा रानी के चरण के रज प्राप्त करना है तो ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो हम लोग कौन है, हम लोग क्या स्थिति है, और राधा रानी के चरण कमल हमें कैसे प्राप्त होंगे? तो ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को भी इतना न्यून स्थान ग्रहण करना पड़ेगा, तो हमें तो और नीचे स्थान ढूंढना पड़ेगा उसके, अगर इच्छा भी होती है तो। नंबर 1। अभी अब आती है बारी महादेव जी की। महादेव जी तो वैष्णवानान यथा शंभु है वो, लेकिन उसके साथ साथ वो विनाशकारी देवता भी हैं, वो कला के देवता भी हैं, उनके अंदर बहुत अधिकार है। वो महादेव के रूप में जाने जाते हैं। सभी देव उनकी पूजा करते हैं महादेव के रूप में, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उनके आशीर्वाद से कितनी ऐतिहासिक घटनाएं संपन्न हुई है। और उनका भी एक निजी जीवन है, एक ऑफिशियल जीवन है, भगवान की सेवा में, ब्रह्मा जी की सेवा में उनका काम चलते रहता है। और एक उनका निजी जीवन है जिसमें उनका भक्ति का जीवन है वो। तो वो महादेव वृंदावन में एक स्त्री बनकर बैठे हुए हैं, गोपेश्वर महादेव। वो महादेव, हाँ, उनको संकोच नहीं हुआ कि ललिता ने कहा कि रास में प्रवेश करना होगा तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। यहाँ पर सब लोग स्त्री हैं। स्त्री बनना मतलब क्या? हमको लगता है कि स्त्री का शरीर धारण करना पड़ेगा। स्त्री बनना मतलब उस भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। वो जो सबऑर्डिनेट भाव है, वो जो शरणागति का भाव है, वो जो सखी भाव है, वो सेवा भाव जो है, वो निम्न भाव है, जो नम्र भाव जो है, उसको ही सखी भाव यानी कि स्त्री शरीर कहते हैं। इसमें स्त्री शरीर की महानता है। तो संकोच नहीं हुआ उनको पुरुष होने पर भी। तत्क्षण उन्होंने उधर मानसरोवर में स्नान किया और वो स्त्री बन गए। और तत्क्षण भाग के आए, बिना ये जाने कि वो सांप मेरे ऊपर विराजमान है, वो तो गोपी नहीं बने और मैं ही गोपी बनाऊं। तो ललिता देवी हंस पड़ी गोपियों के साथ कि देखो कैसा भाव है इनका। हा? तो शंकर जैसे महानुभाव, ऐसे महादेव जो हैं, वो भी वहां पर अपने पुरुष शरीर को छोड़कर स्त्री शरीर धारण करके गोपेश्वर बनकर बैठे हुए। वो भी वहां बरसाने के नीचे कुंड है, बिहार कुंड, वहां पर वो स्त्री बनने के लिए आते हैं और श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं कि उनको जमता नहीं है वो कैसे करना है। तो गौरी जी प्रकट होती है और गौरी जी अपने पति को कहती है कि अरे तुम्हें तो पुरुषों को कैसे पता है कि हम स्त्रियां श्रृंगार कैसे करती हैं, मैं आपका श्रृंगार करती हूँ। तो अपने पति द्वारा वो श्रृंगारित हुए एक गोपी की तरह, एक स्त्री की तरह, और उन्होंने कहा कि अभी जाओ राधा रानी को पुकारने के लिए। तो ऐसे महादेव जी भी स्त्री बनकर बरसाने आते हैं। और फिर गौरी जी भी अपने आप को श्रृंगार कर कर राधा रानी को पुकारने के लिए बरसाने आती है। फिर उसके आगे क्या लिखा है? नारद मुनि, हाँ, नारद मुनि ढूंढ ढूंढ के आते हैं राधा रानी के जन्म पर कि उनको दर्शन प्राप्त करना है। दर्शन दुर्लभ है राधा रानी के बाल रूप के, इसलिए जन्म के समय पर ढूंढ ढूंढ के आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इतने महान जीव है वो, नारद मुनि की महानता का वर्णन नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी महान 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 भक्त हैं जिनका भागवत जी में चरित्र के रूप में वर्णन आता है, वो सब मेजॉरिटी लोगों के गुरु जी नारद मुनि हैं। और महाभारत में, रामायण में नहीं, अपना भागवत में नहीं भी होगा तो वो उसमें की बाकी लोग भी उनके ही शिष्य हैं, जैसे वाल्मीकि मुनि हैं। कितने सारे महान भक्त जो इस विश्व के इतिहास को उन्होंने बदल दिया है। ऐसे महान भक्तों का परिवर्तन जो है नारद मुनि की कृपा से हुआ है। तो वो नारद मुनि भी ऐसे लालायित होकर वहां पर आते हैं, हाँ, राधा रानी को दर्शन करने के लिए। उसके बाद विष्णुदेव का तो वो भी बरसाने में आने का उल्लेख तो अभी तक नहीं पढ़ा मैंने। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसे जीवों को भी ये राधा रानी के चरण कमल बहुत दुर्लभ है।
ऐसे जीवों के भी ये दुर्लभ है। इसलिए मैं अभी ये विचार करता हूं आजकल कि इन लोगों ने दर्शन करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। देखो, ये सब लोग, उनको वृंदावन में चिरंतन निवास नहीं प्राप्त है। एक ही शिव जी हैं, एक ही पार्वती देवी हैं, जिन्होंने त्रैमासिक व्रत किया था, 90 दिन का व्रत किया था, और बहुत कठिन व्रत था वो, दोनों ने मिलकर किया था, और दोनों ने मिलकर करने के बाद में उनको राधा रानी और श्याम सुंदर जी दर्शन दिया था, और हमारे ब्रज में आप कहीं भी रह सकते हो चिरंतन काल तक, ऐसा वरदान दिया था। तो अपने निजी जीवन, अपने निजी साधना के उपलक्ष्य में, निजी प्रेम साधना के उपलक्ष्य में वो चिरंतन निवास करते हैं। कि सूर्यदेव, सुबह में अर्घ्य अर्पण करा था, तो मेरे मन में विचार आया कि देखो, ये सब जीव, ये सब जो देवता लोग हैं, इनको प्रत्यक्ष प्रवेश धाम में नहीं है, केवल शिव जी और पार्वती जी को है। सुदर्शन चक्र को गोवर्धन में स्थान मिला है, गणेश जी को काम्य वन में स्थान मिला है, और सूर्यदेव वहां पर सूर्य कुंड पे रहते हैं। लेकिन इनका इनका कैसा सहयोग है भगवान की सेवा में। वो सूर्यदेव की पूजा करने के बहाने राधा रानी निकलती है और कृष्ण को मिलती है। तो सूर्यदेव जो है, उनकी पूजा के बहाने राधा रानी कृष्ण को मिल सकती है, ये उनकी सेवा है। वायुदेव की सेवा क्या है, वो जो जमुना नदी है उसके ऊपर जो शीतल शीतल बाष्प है, उसको ग्रहण करती है वायु, और उसको ग्रहण करते हुए जो कमल खिले हुए पुकेसर है, जो सुगंधित पुकेसर है, उसको भी ग्रहण करते हैं। तो वायु जो है अपने आप को सुगंधित और शीतल कर देती है, और फिर वो शीतल सुगंध लेकर वो मंद 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 बहती है, और राधा कृष्ण के दिव्य विग्रहों को, दिव्य उनकी त्वचाओं को आनंद देती है। ऐसे इंद्रदेव भी ऐसा इंतजाम करते हैं कि सब वातावरण सही हो, जब चाहे तभी हल्की हल्की वर्षा हो, जब चाहे तो बड़ी बड़ी वर्षा हो। हर प्रकार के देवता, गंधर्व जो है जब लीला करते तो आकाश में आके स्नान करते, नृत्य करते हैं। तो सभी देवता ऐसे लालायित रहते हैं कि कुछ ना कुछ मिले हमको इनकी सेवा में। उसके लिए क्या रूप धारण करना पड़ेगा, चलेगा। कोई निम्न रूप धारण करना पड़ेगा, कोई तुच्छ रूप धारण करना पड़ेगा, कोई तुच्छ रूप कारण से प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन वो लालायित रहते हैं। इसलिए हमें इन देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, इन देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं देवताओं ने हमको मार्ग दिखाया है। ब्रह्मा जी ने वहां पर पत्थर बनकर मार्ग दिखाया है, कैसे कृपा प्राप्त करनी है। महादेव जी ने स्त्री बनकर वहां पर मार्ग दिखाया, गोपेश्वर महादेव के रूप में वो उसकी सेवा करते रहते, तत्पर रहते हमेशा। हाँ, सूर्यदेव वहां पर प्रकट होने को तैयार है, अगर राधा रानी की सेवा मिलती है तो वहां पर आतुर रहते हैं। हाउ कैन वी सर्व। हाँ, और कैसे भाग भाग के आते हैं। जब जन्म होता है राधा रानी का, कृष्ण का, तो ब्राह्मण बनकर भेष बदल कर आते हैं, छुप छुप कर दर्शन करके चले जाते हैं। उनको पता है कि हमें यहाँ पर वैसा प्रवेश नहीं है, फिर भी वो छुप छुप कर आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। जब कृष्ण और देवकी के गर्भ में है तो कारागृह में आके प्रार्थना करते हैं। तो राधा रानी प्रकट होने वाली है तो नंदगांव, वहां पर रावल में और बरसाने में आकर प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये सभी देवताएं, इनका एक निजी जीवन है जिसमें वो लालायित रहते हैं श्री जी और कृष्ण की चरणों की धूल प्राप्त करने। तो हम लोग कृष्ण के भक्त हैं और हमको बताया गया है कि देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कामैस्तैर् ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कहा गया है कि अपनी कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए हमें देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। और ऐसे भाव से, इंद्रिय तृप्ति के भाव से जब भी देवताओं के पास हम जाते हैं तो ऋतज्ञाना, हमारा ज्ञान छीन लिया जाता है। कामैस्तैर् ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ऐसे भाव से अगर हम देवताओं को शरण जाएंगे तो वो हमारा सब ज्ञान छीन लेंगे, बुद्धि छीन लेंगे, और हमको नरक में डाल देंगे और अनंत भोग यातना भोगने के लिए। लेकिन दूसरा एक तरीका है उनकी ओर देखने का कि हमें किसी भी इंद्रिय भोग की वासना से उनके पास जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनके पास जाना चाहिए ये याचना लेकर के हमें कृष्ण की और राधा रानी के प्रति अनुराग प्राप्त हो। स्वयं गोपियों ने भी किया है, तो गोपियां तो उनसे भी बहुत श्रेष्ठ हैं सभी देव देवताओं से। लेकिन फिर भी देवियां, कात्यायनी देवी, भवानी देवी, पार्वती देवी का पूजन करते हैं, इस भाव से नहीं कि उन्हें कुछ इंद्रिय भोग प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण की निम्न सेवा प्राप्त हो जाए, इस भाव से गोपियों ने भवानी देवी, कात्यायनी देवी का पूजन किया था। तो हमें भी शंकर जी को प्रार्थना करनी चाहिए,
कात्यायनी देवी को प्रार्थना करनी चाहिए, सूर्य देव को प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ, सब महाजनों को प्रार्थना करनी चाहिए, नारद मुनि को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही ये मार्ग दिया है कि कैसे हमें राधा रानी और श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य बनना है। इसलिए को देवताओं का तिरस्कार करके हमको राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। देवताओं के प्रति सही रूप में, वास्तविक रूप में सम्मान देना ये बहुत जरूरी है। तो ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि राधा रानी कौन है, किनके विषय में हम सुनना चाहते हैं और सुनने की अभिलाषा रखते हैं, किनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, ये पता होना जरूरी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको शंकर की बात बताई, लेकिन सारे देवी देवता भी वहां पर स्त्री बनकर आते हैं, क्योंकि बरसाने में सखी भाव के बिना प्रवेश नहीं हो सकता है। हम लोग पुरुष शरीर में जा सकते हैं वहां पर, लेकिन हमें वो अनुभूति नहीं होगी और आत्मिक स्तर पर प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन जब सखी भाव धारण करते हैं, सखी भाव का मतलब क्या है? सखी भाव मतलब सेवा भाव, निम्न भाव, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु के दिया हुआ जो श्लोक है ना, वो कंठहार की तरह है, हमारे गले में पहनने जैसा है। हरिदास ठाकुर को ये भगवान ने कहा था कि आप इस मंत्र के मूर्तिमान स्वरूप हो, क्योंकि आप ज्ञानी भी हो, परम पवित्र भी हो और परम नम्र भी हो, सिद्ध भी हो, लेकिन एक साथ में आप नम्रता को भी अपनाते हो, आप ऐसे अलंकार हो। तो वो जो भाव है उसको सखी भाव कहते हैं, क्योंकि सारी सखियां जो कृष्ण की है वो इस भाव में रहती है। कभी भी कृष्ण को वो स्वामी बनना नहीं चाहती, उनकी सेविका बनना चाहती है, या कि तुच्छ सेविका बनना चाहती है। और उसके आगे की बात सुनिए, स्वयं कृष्ण भी बरसाने में सखी बनकर चुनरी ओढ़कर प्रवेश करते हैं। जो परात्पर भगवान है, जो गोलोकेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सब चराचर सृष्टि उनके निर्देश से चलती है, कोई पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना हिलता नहीं है। सारा निर्माण उन्होंने किया है, आध्यात्मिक और भौतिक सब निर्माण उन्होंने द्वारा किया गया। और वृंदावन के भी वो स्वामी हैं, वृंदावन में भी उनका नियंत्रण है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वास्तविक रूप में वृंदावन में राधा रानी का नियंत्रण है। राधा रानी की उनकी ऐसी शक्ति है कि वो उनको भी नियंत्रित करती है। और वो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण भगवान बरसाने में आते हैं। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरे अनंत ब्रह्मांड, पूरा निर्माण, भौतिक और दिव्य निर्माण के जितने भी जीव हैं, वो सब श्री कृष्ण भगवान के चरणों की रज प्राप्त करना चाहते हैं। और वो रज जो है वो कहीं भी धामों में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि द्वारका, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, यहाँ जहां जहां भगवान जाते हैं लीला करने के लिए, भगवान के रूप में पूरे ऐश्वर्य के साथ, उन सारे, जैसे रंगनाथ जी हैं, इन सारे धामों में भगवान के चरण की रज अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने अपने चरण वहां पर लगाए ही नहीं है। हमेशा वो मखमल पर चलते हैं वैकुंठों में, और यहाँ पर प्रकट हुए वैकुंठों में, चार धामों में। और ऊपर जब चलने की इच्छा होती है तो उनको रत्न जड़ित पदत्राण दिए जाते हैं। ही इज गिवन वंडरफुल शूज, ऊपर से रत्न दिया जाता है। तो कहाँ पर चरण लगेंगे भूमि को? तो एक ही भूमि है जो वृंदावन धाम के, जहां पर वो सब कुछ ऐश्वर्य छोड़ के आते हैं। तो सारे संतगण उनके चरणों की अभिलाषा करते हुए वृंदावन में आते हैं। जिन चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए सारे संतगण वृंदावन में आते हैं। वो भगवान जिनके चरण रज सबको अपेक्षित है, और जो संतों को और ऋषि मुनियों को, योगियों को, ध्यानियों को, तपियों को अनंत साल, अनंत जन्म तपस्या करने के बाद भी वो चरण रज प्राप्त नहीं होती है कृष्ण की, वो श्री कृष्ण, वो परात्पर भगवान खुद के लिए कृपा प्राप्त करने के लिए बरसाने में आते हैं। सब कुछ अपना ऐश्वर्य भाव तो पहले ही छोड़ ही दिया है, लेकिन जो भी छोटा मोटा ऐश्वर्य बचा हुआ है वो उसको भी छोड़ देते हैं। मेरा शरीर पुरुष का है, इस बात को भी छोड़ देते हैं। स्त्री शरीर प्राप्त करके, सखी बनकर, चुनरी ओढ़कर, नम्र होकर राधा रानी के धाम में आते हैं और चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। राधा रानी के चरण चिन्ह की जहां पर नजर पड़ती है, दर्शन होता है, वहां पर लोटपोट हो जाते हैं। जब वो रूठ जाती है तो उनके चरणों में अपना मोर मुकुट रखते हैं, सर झुकाते हैं, अपनी आंखों से अश्रु बहाकर, नदियां बहाकर उनके चरण धोते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं। ये हमारे भगवान की स्थिति है। यहां तक कि श्री कृष्ण ने
राधा रानी को जब विवाह किया तो राधा रानी ने उनको कहा कि घर में ही रहो, हमारे घर जमाई बनकर। तो बरसाने में वो घर जमाई बनकर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनरी ओढ़ते हैं उनको। आप श्री जी के मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे, आपको लगेगा एक चुनरी श्री जी को उड़ाई हुई है और एक बड़ी चुनरी जो है दोनों को उड़ाई हुई है, और राधा कृष्ण के ऊपर से जा रही है, और उसका टच जो है वो श्याम सुंदर के सर पर है, लाल जी के सर पर है वो। यानी कि श्री जी की सखी ही बनकर वो रहते वहां पर, श्यामा सखी बनकर वहां पर रहते। हमें ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक सखी बनना एक पुरुष के लिए कितना कठिन होता है, ये कौन सा भाव है। उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। जो जो हम सोचते हैं हमारा है, मेरा है, मैं हूं, तो मेरा अधिकार है, मेरी शक्तियां हैं, मेरा पावर है, मेरा नियंत्रण है, ये सारा स्वामित्व छोड़कर परम दास्यत्व स्वीकार करना पड़ता है, वो भी स्त्री रूप में। और वो कृष्ण को करने के लिए कोई संकोच नहीं, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो नंदगांव में अधिक समय रह नहीं सकते वो, क्योंकि वो विरह सहन नहीं कर सकते, तो उनको बार बार कन्या होकर सखी बनकर बरसाने में प्रवेश करना पड़ता है। ये है राधा रानी, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका अस्तित्व है ये भी लोगों को पता नहीं है। जो वेदों को पढ़ते हैं, जो संत ऋषि मुनि जो वेदों को पढ़ते हैं, उनको उनकी अनुभूति नहीं होती, कृष्ण की नहीं होती, राधा रानी कैसी होगी? क्योंकि राधा रानी कृष्ण का कॉन्फिडेंशियल लाइफ है, कृष्ण का भी एक ऑफिशियल लाइफ है, जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। सबको स्मृति देने वाले, सबको विस्मृति देने वाले, सबको ज्ञान देने वाले, सारे वेदों को निर्माण करने वाले, सभी वेदों से जिनको जानना है वही कृष्ण है, सब वेदों का सार वही है। हाँ, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, धर्म की स्थापना करते हैं, ये सब उनका ऑफिशियल जीवन है, ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ, जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन उनका भी एक निजी जीवन है। जब वो घर आते हैं तो चाहते हैं कि सब भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। ये स्वामित्व, ये नियंत्रक, ये सब सृष्टि का निर्माता, ये सब जो पोजीशन है ना, वो ज्यादा दिन तक आनंद देती नहीं, भगवान को भी देती नहीं है। हमको कैसा देगी? भगवान को भी नहीं देती वो आनंद। और भगवान भी सब कुछ वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर ये वृंदावन में आना चाहते हैं, सब कुछ भूल कर, जगन मोहिनी माया को फैलाकर प्रभाव सबके ब्रजवासियों को ऊपर कर कर उनका सारा ज्ञान छीन लेते हैं, इस भाव से कि ये सब भूल जाए कि मैं भगवान हूं और मेरे साथ ये ऐसा आदान प्रदान करे एक सामान्य व्यक्ति की तरह। इसका पूरा आयोजन करके आते हैं वो। हाँ, हम लोग सब लोग जीवन में अपने ऐश्वर्य को बार बार ले लेकर बढ़ाना चाहते हैं, ऐश्वर्य संपन्न और होना चाहते हैं। और भगवान जो सर्व सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, वो अपने ऐश्वर्य को भूल कर प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, कि प्रेम की महिमा को, लीला को आस्वादन करना चाहते हैं, और वो करने के लिए वो वृंदावन आते हैं। देखिए कितनी महान चीज है। कृष्ण का सबसे निजी, सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे गुह्यतम जीवन जो है वो राधा रानी, क्योंकि उनके हृदय को जिसकी चाहत है, जिसकी तृष्णा है, उस तृष्णा को तृप्त करने वाली सर्वोत्तम व्यक्ति राधा रानी है। और उस तृष्णा को प्राप्त करने के लिए भी उनको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। वो अपने कृष्ण के सर्व ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप में आकर वो तृष्णा को तृप्त करने की कोई संभावना नहीं है उनके लिए। उनको भी जब तैयारी करनी पड़ती है तो हमको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। जो राधा रानी के निर्माता हैं, जिनके द्वारा ही राधा रानी का निर्माण हुआ है, ऐसा होने पर भी उनकी ही कृपा प्राप्त करने के लिए कृष्ण को इतनी तैयारी करनी पड़ती है, इतना सब अरेंजमेंट करना पड़ता है, वातावरण निर्मित करनी पड़ती है, माधुर्य भाव की निर्मित करनी पड़ती है, अपने ऐश्वर्य को छोड़ देना पड़ता है, नंगे पैर आना पड़ता है, मोर मुकुट पहनना पड़ता है, राज मुकुट वैदुर्य मणि का छोड़ देना पड़ता है, सारे ऐश्वर्य अलंकार छोड़ देने पड़ते हैं। और ये यक्कश्चित गवड़ी बनकर, हाँ, गोपाल बनकर आते हैं वो, यक्कश्चित गोबर गोमूत्र में चलने वाले, घूमने वाले, रेंगने वाले जीव बनकर आते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, कि वो व्यक्ति है राधा रानी जिनके लिए कृष्ण भी इतने लालायित रहते हैं, इतने नम्र हो जाते हैं, इतने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं, सर्वस्व निछावर कर देते हैं। इसी राधा रानी के विषय में शंकर जी ने एक स्तोत्र लिखा है, राधा कृपा कटाक्ष।
कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इतना सुंदर श्लोकों की रचना की है कि हे राधे, कब कृपा करोगी, कब आपके कृपा कटाक्ष मुझ पर पड़ेगा और कब मैं धन्य हो जाऊंगा। ये राधा रानी का ये श्लोक बनाकर शंकर जी भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी पार्वती जी को दिया और पार्वती जी ने इसको पठन किया हुआ है। देखिए आप, क्या स्थिति है राधा रानी की, क्या उनकी आदरणीय वंदनीय स्थिति है कि शंकर जैसे महादेव अपने निजी प्राइवेट लाइफ में ऐसा कंपोजिशन करते हैं, ऐसा काव्य लिखते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। हे राधे, आप सभी मुनियों के द्वारा, मुनि को इंद्रों के द्वारा पूजित हो। मुनिंद वृंद वंजिते त्रिलोक शोक हारिणी, सब त्रिलोक के शोक आपको आप हरण कर सकते हैं। आपका मुख कमल जो प्रसन्न वक्त्र पंकजे, कमल की तरह प्रसन्न है। निकुंज भू विलासिनी, आप स्वयं निकुंजों के भूमि पर शयन करती हैं। ब्रजेंद्र सूनु संगते, तो नंद महाराज के पुत्र हैं नंद कृष्ण भगवान, उनके साथ आप विराजती हैं। हे वृषभानु नंदिनी, कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी। तो ये सब तैयारी की बातें हैं। हाँ, ऐसे ही प्रवेश नहीं होता है। और हमारे न्यून भाव को जब हम किसी संत के माध्यम से प्रकट करते हैं, संत की चरणों में प्रकट करते हैं, उनको विनती करते हैं कि आप हमारे भाव को राधा रानी तक पहुंचाओ, आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो उन संतों की कृपा याचना करने पर हो सकता है कि हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा दृष्टि पड़ेगी। ऐसी राधा रानी, जब भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था तभी भी राधा रानी का रहस्य है उसके अंदर। मैया सोच रही है कि मैंने अच्छे अच्छे पद्मगंधा गायों का दूध पिलाया, इसलिए राधा रानी, इसलिए कृष्ण भगवान इतने शक्तिशाली हुए, आज गोवर्धन को उठा पाए। देखो काम आया ना, इतना मेहनत किया तो ग्वाल बाल हंस रहे हैं और वो कह रहे मैया को क्या पता हुआ है, मैया को कछु पतो ना है। ये हम लोग ने उनको कुश्ती खिला खिला कर जो हराया था रोज गौचारण के अंदर, उसमें हार हार कर जो शक्ति प्राप्त किया था, इसलिए बलदंड हो गया और आज उसके भुजाओं में इतनी शक्ति आ गई है कि वो गोवर्धन को धारण कर सकता है। ऐसे ही ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि मैयाओं को कुछ पता नहीं है, लेकिन गोपियां क्या सोच रही है कि ये ना मैया को पता है ना ग्वाल बालों को पता है। सत्य तो ये है कि राधा रानी को वो देख रहे हैं, राधा रानी उनको देख रही है, उनकी तिरछी नजर कृपा कटाक्ष उन पर पड़ा हुआ है। राधा रानी के नेत्रों का और कृष्ण के नेत्रों का मिलन हो रहा है, वहीं से सारी शक्ति प्राप्त हो रही है। और आगे जाकर ये लीला है जो आगे बताएंगे आपको, इसमें ये सिद्ध हुआ है, ये प्रमाण दिया गया है कि राधा रानी की नजरों की शक्ति से ही कृष्ण को शक्ति प्राप्त हो रही थी और वो गिरिराज को उठा पा रहे थे। ऐसी हमारी राधा रानी। तो विनती एक ही है कि सारी गोपियां उनसे निर्मित हैं, सारी वैकुंठों की लक्ष्मियां उनसे निर्मित हैं, जितनी द्वारका की महिषियां हैं, कृष्ण की पत्नियां हैं, वो उनके द्वारा निर्मित हैं। वृंदावन धाम की कृपा उनके द्वारा है, उन्हीं के द्वारा वृंदावन धाम उपलब्ध है, उन्हीं के द्वारा जमुना जी उपलब्ध है, उनकी कृपा के द्वारा, इच्छा के द्वारा गोवर्धन वृंदावन धाम में उपलब्ध है। ऐसी महान राधा रानी श्री कृष्ण का अस्तित्व का सार है। शी इज द होल हार्टेड फाउंडेशन ऑफ कृष्णा's एग्जिस्टेंस। श्री कृष्णा के अस्तित्व का वो फाउंडेशन है, वो भूमि है जिस पर कृष्ण भगवान अपने जीवन को खड़ा करते हैं। ये कृष्ण का जीवन जो है उसका आधार राधा रानी है, उसका आश्रय राधा रानी है। कृष्ण अगर हमारे लिए उपलब्ध है तो वो राधा रानी की कृपा से उपलब्ध है। तो आइए हम सब लोग इस राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि राधा रानी के जीवन में केवल दो ही उद्देश्य होते हैं। एक है परम उद्देश्य, वो है श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को खुशी देना, और दूसरा उद्देश्य है सभी जीवों को पुष्टि देना, पोषण देना भक्ति मार्ग में। सभी जीवों के अंदर जो थोड़ी बहुत कण मात्र भक्ति भावना है, उसका उगम राधा रानी है,
और राधा रानी की तरफ से ही सबको वो भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, संतों की कृपा से, संतों के माध्यम से। तो आइए हम राधा रानी के इस उपलक्ष्य में, जन्म के उपलक्ष्य में, अवतरण के उपलक्ष्य में, ये जो कृष्ण के लिए भी रहस्यमय बात है, ये जो संतों के लिए भी रहस्यमय बात है, ये सभी योगी ध्यानी तपी इनके लिए भी ये रहस्यमय बात है। वो रहस्य की उगम जो है, रहस्य का सार जो है, रहस्य का अनंत सागर जो है, वो है राधा रानी। और उनके इस जन्म उत्सव को मनाने के लिए हम बार बार अनंत बार प्रार्थना करते हैं। तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी, बार बार उनके चरणों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। मन याद करो, मन याद करो, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। तो हमें उन चरणों का ध्यान करना है, अनंत बार प्रार्थना करनी है, कृपा याचना करनी है, तब जाकर वो जब प्रसन्न होंगी तो हो सकता है एक कृपा की किरण हमारी ओर भी डाल सकती है। हम सबको इसी प्रकार से राधाष्टमी की तैयारी करनी चाहिए। मैं आप सबके लिए, मेरे लिए भी राधा रानी के चरणों में अनंत प्रार्थना करता हूँ कि उनके जन्मदिन की जो अनंत कृपा है उसको प्राप्त करने के लिए हम सब लोग योग्य हो जाएं और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नामुमकिन है। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जो होस्ट है वो लोगों को अनम्यूट करके उनको प्रश्न पूछने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आज मतलब आज ललिता षष्ठी भी है, तो कुछ तो कुछ 2-3 आप बता सकते हैं? वो उसके विषय में मैंने जानबूझकर बातें इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे इस्कॉन संस्था में मेरे ख्याल से परम पूज्य भानु महाराज ने वो रिसर्च किया है बहुत बड़ा, और उस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने ये अभी साबित किया हुआ है कि ललिता जी का जन्मदिन ललिता षष्ठी को नहीं हुआ था, किसी अन्य तिथि में हुआ था, समवेयर इन फरवरी। और वृंदावन धाम और बरसाना धाम और उच्चाग्राम के लोगों के अनुसार वो ललिता षष्ठी के दिन ही होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे विवादित विषय पर हम आज नहीं चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें अभी थोड़े से मतभेद हो गए हैं शास्त्र के अनुसार। लेकिन ललिता जी का गौरव हम हमेशा ही कर सकते हैं, उसमें कोई तिथि की आवश्यकता नहीं है। तो ललिता जी जो है वो राधा रानी की बड़ी ही विशेष और बड़ी ही प्रिय, सर्वप्रिय सखी है, उम्र में बड़ी है उनसे। और शास्त्र में भी मैंने पढ़ा है कि वो 27 दिन बड़ी है, और इस षष्ठी के माध्यम से वो केवल 2 दिन बड़ी हो जाती है। तो ये जो रहस्य है मुझे भी पता नहीं है क्या वास्तविक चीज है, खैर उसकी कोई बात नहीं। वो अशोक गोप और शारदा देवी की कन्या है, और वो उच्चग्राम में रहती है, उच्चग्राम, जहाँ पर अशोक पर्वत, जिसका नाम अटोर पर्वत भी है, वहां पर बहुत धर्मशील गोप थे अशोक जी, जो वृषभानु महाराज के बड़े भाई थे। और शारदा देवी उनकी सुविद्य पत्नी थी, बड़ी अच्छी भक्त थी, उनके द्वारा ललिता देवी की प्राप्ति हुई। और ललिता देवी राधा रानी की बड़े ही विशेष भक्त सेविका हैं, और उनको राधा रानी उनको गुरु भी मानती है, क्योंकि राधा रानी का स्वभाव बहुत कोमल है और ललिता देवी का स्वभाव बहुत उग्र है, बहुत तेज है वो, डरती नहीं है कभी। जब भी कृष्ण आतंक करते हैं राधा रानी के ऊपर तो ललिता देवी उनको शील्ड करती है, उनको कवर करती है और कृष्ण को डिफीट कर देती है। और जब भी राधा रानी कृष्ण के लिए व्याकुल हो जाती है तो ललिता देवी आती है और कृष्ण के मिलन की व्यवस्था करती है। तो दोनों प्रकार के काम करती है, आतंक को भी संभालती है और इच्छाओं को भी पूर्ण करती है। जब भी मिलन की आसक्ति होती है तो ललिता देवी उनको पूर्ण करती है। और फिर उनका एक सखी गिरी है वहां पर ऊंचा गांव में, वहां पर बहुत सारी दिलाएं
ललिता देवी की हुई हैं। ललिता देवी का विवाह भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, यानी अभी जो आएगी त्रयोदशी, उस दिन स्वयं कृष्ण राधा रानी कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर जी के साथ ललिता जी का विवाह करते हैं, वो भी सखी गिरी के ऊपर, और झूला भी झूलते हैं उनके साथ में। तो उसी सखी गिरी पर कृष्ण ने ललिता जी की गाय को दोहन किया था, दुग्ध निकाला था। ललिता देवी ने उसके बछड़े को पकड़ा था और कृष्ण ने ललिता जी के गाय का दोहन किया था। ललिता जी के गांव में रेवती जी और बलराम जी आए थे। रेवती जी का विवाह जब बलराम जी से हुआ तो अपनी प्रिय सहेली ललिता जी को मिलने के लिए बलराम जी वहां पर आए थे। बलराम जी को लेकर रेवती जी आई थी और बहुत दिन तक निवास किया था, इसलिए रेवती बलराम जी का भी मंदिर उसी उपलक्ष्य में ऊंचा गांव में है। ऊंचा गांव में नारद मुनि का भी अवतार हुआ है, जिनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने ऊंचे गांव में त्रिवेणी कूप निर्माण किया है, जिसमें त्रिवेणी संगम का प्राकट्य हुआ था। ललिता जी के गांव में देह देह कुंड है, जहां पर कृष्ण के विरह में सभी गोपियों ने अपना देह निछावर कर दिया था। बहुत ही उत्कट स्थान है सब ये। और ऊपर अटोर पर्वत पर ललिता जी का दर्शन है, राधा रानी के साथ, श्याम सुंदर जी के साथ, और वहीं से उनका लालन पालन हुआ था। और ललिता जी के गांव में ही राधा कृष्ण को मेहंदी लगाई गई थी, पैरों को, हाथों को, सब जगह पर। और एक फिसलनी शिला है, वहां पर उनको फिसलन लीलाओं को प्रवृत्त किया था। तो वहां पर राधा रानी झूलते भी हैं और राधा कृष्ण वहां पर फिसलन पहाड़ी भी करते हैं। और उनके गांव में वो मेहंदी शिला भी है, ललिता जी के गांव में। बहुत ही प्रसिद्ध सखी सखी पर्वत है वो, सखी गिरी, और ललिता देवी का अविभाज्य अंग है। ललिता जी के बिना राधा रानी एक तरह से अपने आप को अधूरी मानती है, और ललिता जी को ही वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है राधा रानी ने कि जितने भी जीव मुमुक्षु हैं, जितने भी जीव भगवान के इच्छुक हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, उन सबको पकड़ पकड़ कर लाना जो है वो ललिता देवी का काम है। ललिता देवी हम जैसे पतित जीवों को अपने शरण में लेती है और तैयार करती है, और फिर राधा रानी को प्रस्तुत करती है, फिर राधा रानी आगे पॉलिशिंग करती है, फिर वो कृष्ण को अर्पण करती है। श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में ये लीला का वर्णन किया है कि जब भी गुंडीचा मार्जन का लीला चल रही थी, उस समय एक बंगाली वैष्णव आया, उसने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जल डाला, और चरणों को स्पर्श करके एक तरह से धोकर वो जल जब वापस आया तो उस बंगाली वैष्णव ने उसको अपने हाथों से ग्रहण किया। तो महाप्रभु ने थोड़ा सा असंतुष्टि व्यक्त की, दोबारा उसने वो जल फेंका और दोबारा वो जल ग्रहण किया। तो महाप्रभु जी ने और थोड़ी सी ज्यादा असंतुष्टि व्यक्त की। उसके बाद तीसरी बार भी जल उसने एक तरह से दिव्य उद्दंडता के साथ जल छिड़का, लेकिन मन ही मन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और तीसरी बार जब जल डाला और वो जल को वापस ग्रहण किया चरणामृत के रूप में, तभी स्वरूप दामोदर जी को महाप्रभु ने बुलाया, बोला समूह स्वरूप दामोदर आ जाओ इधर, देखो तुम्हारे बंगाली वैष्णव कैसे अनट्रेंड है, कैसे असंस्कृत है। हाँ, संस्कृति नहीं, उनको कोई कल्चर नहीं है, उनको जरा अपने कब्जे में ले लो, अपने नियंत्रण में ले लो और उनको ट्रेनिंग दे दो। तो उस समय सारे बंगाली वैष्णव जो थे वो सब स्वरूप दामोदर जी के नियंत्रण में आ गए और उनकी जो ट्रेनिंग है उनके अंडर हुई। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस दिन से हम सारे गौड़ीय वैष्णव जो है वो ललिता जी के शरण में गए, हमारा आश्रय ललिता जी हैं, और ललिता जी के माध्यम से हम राधा रानी को, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। स्वरूप दामोदर स्वयं ललिता जी के अवतार हैं। तो ये ललिता जी का विशेष विशेष स्थान है साकरी कोर लीला में और रास लीला में। यहाँ तक कि जितनी कृष्ण की लीलाएं होती है वो वृंदा देवी आयोजित करती है, और वृंदा देवी की लीलाओं का आयोजन जो है वो बीज रूप में ललिता के निर्देशन में होता है। ललिता जो है उस लीला का बीज रूप में, सार रूप में, तत्व रूप में उनको मार्गदर्शन करती हैं, और फिर उनके तत्व रूप में दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार वृंदा देवी पूरी विस्तार पूर्वक लीलाओं का आयोजन करती है। तो वृंदा देवी भी ललिता की शरणागत हैं और ललिता जी से आदेश प्राप्त करती है, और हर दिन की जो विस्तार पूर्वक 12-12, 15-15 घंटे की लीला होती है, वो सारी लीलाओं का नियोजन, हाँ, सार रूप में निर्देशक जो है, डायरेक्टर, वो ललिता देवी है। ललिता जी का गौरव भी अनंत है। ललिता जी का रंग जो है गौरवचंद जैसा है, और वो मयूर पुच्छ श्रृंगार करती है, मयूर पुच्छ जैसा। और ललिता देवी को कृष्ण की सबसे बड़ी प्रिय सखी है वो, और
राधा रानी की, और कृष्ण को भी बड़ी प्रिय है, क्योंकि वो जानते हैं जब भी समस्या होती है मिलन में तो ललिता देवी सहायता करती है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का राधा रानी के जन्म के उपलक्ष्य में तैयारी करने के विषय में? हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। यस माता जी पूछिए। प्रभु जी, आपने जो बताया वो काम्यवन में गणेश जी का वास है। हाँ, तो उसकी क्या स्टोरी है, वो आप बता एक सकते लंबी हैं? स्टोरी है, मैं अभी बताऊंगा आपको कभी और किसी प्रसंग में बताऊंगा। ओके वो काम्यवन में बलि महाराज के साथ युद्ध किया था गणेश जी ने, और उसका वर्णन जो है वो आदि वारा पुराण में आता है। वराह भगवान ने भूमि देवी को उसका लीला का वर्णन किया, उसके द्वारा काम्यवन में श्री गणेश जी को परमानेंट निवास भगवान ने दिया है। यस प्रभु जी, और किसको प्रश्न है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. हाँ प्रभु जी, हम लोग एक्चुअली नॉर्मल जो भी हमारे डेज में रहते हैं, हम लोग कभी राधा रानी उतना पढ़ते नहीं, हम लोग उनके बारे में उतना, तो हाँ। हमारा मतलब कुछ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब राधा रानी का इतना कुछ। हाँ, जब आपसे सुना वो अच्छा लगा, बट हमें हमारा प्रार्थना क्या रहना चाहिए इस राधाष्टमी के टाइम पे, कोई पूछना था। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब कृपा करेंगी आप? आपकी कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। और आपको अगर राधा रानी के विषय में जानना है तो आप चैतन्य चरितमृत पढ़िए, आदि लीला चैप्टर 4, मध्य लीला चैप्टर 8, 13, 14 और 23, इन सब भी अध्यायों में राधा रानी के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो यहाँ वहाँ के शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने ही चैतन्य चरितमृत में राधा रानी के विषय में बहुत सुंदर विवरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं, जो सुखदेव जी अपने भाव की वजह से नहीं कर पाए। वो सारा वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे लाभ के लिए चैतन्य चरितमृत में देते हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और प्रार्थना आपको यही करनी है कि हमको न्यून से न्यून भाव प्राप्त करना है। तृणादपि सुनिचेना तरोरेव सहिष्णुना। और इसमें से दो बातें जो है वो तो तृण के जैसा नम्र बनना कठिन लग सकता है, कठिन है। वृक्ष के जैसा सहनशील होना कठिन लग सकता है, लेकिन अमानिना मान देना ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप जिनके साथ में रहते हो उन सबका सम्मान करो, उन सबको आदर दो, उनके द्वारा किसी आदर की अपेक्षा मत करो, उन सबके सेवक बन जाओ। गोपी भरतुर पदक मलयोर दास दास अनुदास। और जब ये हम करेंगे तो फिर राधा रानी की कृपा के योग्य हो जाएंगे। तो प्रार्थना करेंगे कि हमें वो भाव मिले जिससे हम सबका सम्मान कर सकें, सबका आदर कर सकें और खुद के लिए आदर की अपेक्षा न करें, और जितना हो सके उतना नम्र और सहनशील बनने का प्रयास करेंगे। यह आपको प्रार्थना करनी है राधा रानी के चरणों में। थैंक यू। तो और कोई वृंदा प्रश्न पूछना चाहती है तो पूछो। हरे ये होस्ट को मैनेज करना चाहिए कौन हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने सारे दर्शन नहीं हो रहे हैं मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। धन्यवाद प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। जब राधाष्टमी होती है तो उसके दिन हम टैमरन यूज कर सकते हैं क्या कुकिंग को राजभोग में? राजभोग में आप सब कुछ यूज कर सकते हो, वो भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ओके। राधा रानी उपवास नहीं करती है, कृष्ण उपवास नहीं करते। नहीं टैमरन प्रभु जी, लाइक बरसाना में वो स्टोरी था कि टैमरन ट्री के नीचे राधा रानी को नहीं वो एक लीला है उनकी, उसमें वो इतना मतलब है ना कि राधा रानी टैमरन खाती नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही आनंददायक क्लास था, बहुत आकर्षक था। आपने बताया दिव्य मतलब रहस्यों का खजाना, जिस तरह से आपने बताया वो बहुत आकर्षक लगा मुझे, और बहुत ही वो ऐसा लगा कि आपने रियली अनुभव किया है। तो हमें भी आपकी कृपा चाहिए कि इस राधाष्टमी में हमें भी आपके द्वारा, आप बोले जैसे बताया कि संतों के द्वारा जब संत प्रेयर करते हैं तो आपको भी उनकी कृपा मिल जाती है। तो हमें आपसे प्रश्न क्या है पूछिए। प्रश्न है पूछिए कि जैसे आपने बताया कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको राधा रानी का कृपा चाहिए, और राधा रानी का कृपा प्राप्त करने के लिए ललिता सखी का कृपा चाहिए। तो हमें ललिता सखी का कृपा कैसे प्राप्त हो? ललिता सखी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु आज्ञा पालन करना चाहिए।
गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना करे हो मने आशा। हमारे लिए ना ललिता उपलब्ध है, बहुत ऊंची ऊंची स्थान पर है और कहीं अलग जगह पर है। राधा रानी भी कहीं अलभ्य स्थान पर है, कृष्ण भी हमारे लिए अलभ्य हैं। हमारे लिए लभ्य जो है वो हमारे गुरुदेव हैं, और वो भी हमें प्राप्त नहीं होते शरीर से, लेकिन उनकी आज्ञा हमारे लिए प्राप्त है। उनकी आज्ञा पर अपन चिंतन करेंगे, जहां भी रहेंगे उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए प्रयास करेंगे और सच्चे हृदय से सरलता से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो अनायासी ललिता जी आप पर अनुग्रह करेगी, राधा रानी भी अनुग्रह करेगी और कृष्ण भी आपको अपना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? जिन्होंने हाथ ऊपर किया था वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राधा रानी का कृपा हुआ है तो हमें कैसे पता चलता है? उसको वो उस व्यक्ति को आप परम नम्र अवस्था में देखेंगे। नंबर 1, सरल हृदय देखेंगे उसका। राधा रानी की कृपा जिस पर होती है ना, चैतन्य महाप्रभु ने उसकी व्याख्या की है कि बहुत अधिक धन, बहुत अधिक ऐश्वर्य, बहुत अधिक भोग उपलब्ध, बहुत नियंत्रण, अधिकार, सब प्रकार की शक्तियां, हाँ, जन्म ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, विद्या, ये सब प्राप्त होने पर भी अगर कोई नम्र है तो वो राधा रानी की कृपा का लक्षण है, ऐसे कहा गया है। क्योंकि ये चीजें गर्व देती है हमको, और ये सब चीजें होने के पश्चात भी अगर कोई नम्रता को दिखा रहा है या आप देख रहे हैं नम्रता उसकी, तो वो राधा रानी की कृपा का लक्षण है। राधा रानी की कृपा जिस पर होती है वो इंद्रिय भोग की भावना से पूर्णता मुक्त दिखेगा। यत्किंचित भी उसके अंदर इंद्रिय भोग की वासना नहीं होगी, और वो नम्रता और हृदय इतना सरल होगा, भोला भाला होगा, और दुनिया में रहते हुए भी आपको दुनिया में रहते हुए नजर नहीं आएगा व्यक्ति। हमेशा सेवा भावी रहेगा, वैष्णवों के चरणों की सेवा करते रहेगा, और कोई यश की, कीर्ति की, सम्मान की अपेक्षा नहीं करता रहेगा। वो साक्षात वो तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, इसका वो प्रमाण होगा। तब हम समझ सकते हैं कि राधा रानी की कृपा उस पर हो गई है। और एक लक्षण है कि उसको धाम की सेवा प्राप्त होती है, ब्रजवासियों की सेवा प्राप्त होती है, वो भी राधा रानी की कृपा का लक्षण है। बिना उसकी कृपा से सच्चा ब्रजवास और सच्ची ब्रजवासी सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है, जब तक राधा रानी कृपा नहीं करती। बाकी सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्रभु जी, बोलते रहिए। प्रभु जी, यू मेंशन्ड इन द क्लास कि हमारे साधना भक्ति से हमें कृपा प्राप्त होना ये बड़ा भ्रम है। So can you elaborate so that we strike a proper balance in terms of our Ultimately, understanding? what is intended in that is pleasure of Sri Gurudev. गुरु की प्रसन्नता और संतुष्टि ये हमको हासिल करनी है, और गुरु जी की आज्ञा पालन करके, उनके द्वारा दिए हुए निर्देशों को पालन करके, जब हम गुरु जी को और बाकी वैष्णवों को वास्तविक रूप में प्रसन्न करते हैं, तो वो कृपा हमें प्राप्त हो, हमारी साधना सफल हो जाती है, और साधना के उपलक्ष्य में हमें कृपा प्राप्त होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि चींटी अगर अपने बहुत सारे प्रयास से सर्वोत्तम बलवान चींटी बनेगी, फिर भी वो हाथी से लड़ नहीं सकती है एट हर बेस्ट। तो वैसे एट हर बेस्ट ऑफ आवर साधना वी कैन नेवर इमेजिन दैट वी विल बी एबल टू अटेन राधा रानीज मर्सी। तो हमारी साधना बेस्ट रखते हुए जब हम वैष्णवों को और गुरुजनों को और गुरु महाराज को प्रसन्न करते हैं, तो वो कृपा हमारे ऊपर अनायासी, हमारे क्वालिफिकेशन के बिना ही आ जाती है। और एक होती है अकारण कृपा। तो गुरु महाराज जब अकारण कृपा करते हैं तो भी ये मुमकिन है, या तो उनको सेवा करके प्रसन्न करो तो ये मुमकिन है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि प्रभु जी, भागवतम में भी कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी क्लियरली राधा रानी को रिवील नहीं होने देते हैं। आराधिता करके एक वर्ड मतलब आता है हर जगह,
और उससे ज्यादा वो राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन या महिमा कहीं भी आने नहीं देते। तो प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि ये इतना कॉन्फिडेंशियल भागवतम में भी क्यों नहीं बताया गया है, इतना क्यों कॉन्फिडेंशियल रखा गया? अगर बता देते उसका एक कारण था प्रभु जी, उसका एक कारण था कि ऐसा नहीं था कि सुखदेव जी को वो बताने की इच्छा नहीं थी, या सुखदेव जी को लग रहा था कि परीक्षित योग्य नहीं है, उसके क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं था। सुखदेव जी की खुद की एक समस्या थी, शाण मासिनी मूर्छा। उनको खुद को पता था कि मैं राधा रानी का नाम उच्चारण करूंगा तो स्वयं 6 महीने की मूर्छा में जाऊंगा, आई विल बी अनकॉन्शियस फॉर 6 months इन एक्सटेसी। और वो जानते थे कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन है, और 7 दिन के विषय में अगर राधा रानी का नाम निकाला मुंह से और वो नाम लेते ही अगर वो बेहोश हो गए तो उद्धार कैसे होगा परीक्षित महाराज? तो उनका जो खुद का प्रेम भाव था उसके ऊपर उनका करुणा भाव था, तो वो प्रेम भाव को रोक कर उन्होंने करुणा भाव को प्रदर्शित किया। सुखदेव जी ने परीक्षित पर करुणा दिखाते हुए वो विषय नहीं निकाला जिससे उनका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो ये भागवत का, डोंट थिंक दिस लिमिटेशन ऑफ भागवत। भागवत के अंदर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत जो है ना, वो पूरी तरह से राधा रानी है, कंप्लीटली राधा रानी है। वो वैसे स्वरूप उसका कृष्ण का है, कृष्णो सुधामो भगते। जब कृष्ण भगवान छोड़ के गए तो कृष्ण भगवान स्वयं भागवत के रूप में प्रकट हो गए, ये बात भी सही है। लेकिन श्री भागवत जी का कृष्ण स्वरूप होने के साथ साथ जो सार रूपी भाव है वो राधा रानी है। जो राधा रानी का हृदय है वही लीलाओं के माध्यम से प्रकट हुआ है श्रीमद् भागवत का। तो एक प्रकार से उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राधा रानी का ही वर्णन किया है। कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है वो सारे तरीके उन्होंने भागवत के रूप में बताए हैं। लेकिन राधा रानी का प्रत्यक्ष नाम लेना उनके लिए आपत्तिजनक था, क्योंकि वो स्वयं उसमें बेहोश होने के स्थिति में थे। इसलिए दया करते हुए परीक्षित महाराज पर उन्होंने ये विषय प्रत्यक्ष प्रकट नहीं किया। तो ये मत समझना कि अरे भागवत भी नहीं कर सकते, हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये वो सिचुएशनल डिफिकल्टी थी उनकी वैयक्तिक डिफिकल्टी थी, इसलिए वो नहीं हो सका। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आपके लिए बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। राधेश्याम प्रभु कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। लेकिन बहुत जगह पर उन्होंने अप्रत्यक्ष सेकंड कैंटो में, 10th कैंटो में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूपी से उनका नाम जरूर लिया है, लेकिन राधा करके नहीं लिया है। अनया राधिता नूनम इस रूप से लिया है, और राधा और भी तरीके से किया है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय प्रभुपाद। धन्यवाद Prabhu, this is Nandini Radha. Prabhu, we do know that Radha and Krishna are always together and no one can separate them. But Radha Rani का अभिमन्यु से विवाह कैसे और कब हुआ? That is a very interesting लीला which we don't hear about mostly. बहुत गहन लीला के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। Anyway, संक्षेप में बताया जाए तो जब भी ब्रह्मा सम्मोहन लीला हुई थी, तो ब्रह्मा सम्मोहन लीला में ब्रह्मा ने सब बछड़े और सभी ग्वाल बालों को चुरा लिया था। तो कृष्ण ने उस एक साल में, जब कृष्ण स्वयं सभी ग्वाल बाल बने थे, सभी बछड़े और सभी ग्वाल बाल कृष्ण स्वयं बने थे। तो उन्होंने फिर जो पहले मना किया गया था विवाह करने के लिए, कृष्ण भगवान ने इस अवसर का लाभ लेकर नंद महाराज से प्रस्ताव रखा कि अभी बहुत सुंदर वातावरण है, सभी तारे ऋषि नक्षत्र उच्च स्थान में है, तो ये अच्छा समय है जब सभी गोपियों का सभी ग्वाल बालों के साथ विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि उनको खुद को पता था कि स्वयं वो ग्वाल बालों के रूप में विराजमान थे, और सभी गोपियों की इच्छा थी कि सभी गोपियों की यही इच्छा थी कि वो कृष्ण के साथ विवाह करें। उन्होंने कात्यायनी व्रत भी करके रखा था कृष्ण को पति प्राप्त करने के लिए। तो फिर उस समय का क्या कहते हैं चांस लेते हुए कृष्ण भगवान ने नंद महाराज को ये कन्विंस किया, और उस समय सारे गोपालों का विवाह कृष्ण के साथ में हुआ। इन गोपालों का विवाह गोपियों के साथ में हुआ। उसमें अभिमन्यु गोप भी कृष्ण ही थे। तो अभिमन्यु के रूप में राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ, और 1 साल तक फिर राधा रानी का कृष्ण का संग हुआ अभिमन्यु के रूप में, और सारे गोपियों का उनके पतिदेव के साथ संग हुआ, वो भी कृष्ण ही थे। तो ये इसका रहस्य है। इज दैट ओके? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
Yes. प्रभु जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने सुंदर तरीके से राधा अष्टमी को के लिए हमारे हृदय को तैयार कर रहे हैं। ये महिमा गान राधा रानी की उत्कट लीला हमारे लिए योग्य, हम योग्य नहीं हैं, लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे को समझाया। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ सबके चरणों में। Yes, Antadeep, you speak. Antadeep, you speak. I all the 3 days. Today is the first day. Yes, Prabhuji. Thank you, Vishnu Prabhu. For actually, you used to come only one day. Now we are having you 3 days. Last time was 2 days. Today is the first installment of your feast for us. So we are looking forward for another 2 more days. I am now darsane pavitra karo ye tumhara gun. Now I am purified by having your darshan. Now I will be having little more qualification to speak tomorrow. Actually, because of that attitude, you are always smiling cheerfully. ये संतों का जीवन में दर्शन होना और सानिध्य प्राप्त करना, उनका संग प्राप्त करना, ये हमारी सबसे बड़ी देन है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है। बिगेस्ट मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल जो है वो संतों का संग है और उनका सानिध्य है। That's why we are very grateful to all of you for dedicating your life in Krishna service and Guru service. Any other question before we close? Antadeep Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, no more questions are there. Okay. What I suggest you that you should just manage this question answer session very nicely, because I am not viewing anybody. I am only viewing myself and few things. And those who raise their hands and ask question, they should be properly guided to have the question and we can answer it nicely, satisfy them, because Radharani's subject is very difficult kind of subject and a lot of confusions are there. And with this forum, we can, give the answer, whatever capacity we have, we will try to answer and give them good chance to ask questions in a particular systematic way. This is my humble request. Yes, Puji. Yes, Puji. And actually, this, today there was some technical concern which came in terms of chat box, but tomorrow that will be managed well, Puji. Yeah. Prabhu, they can actually put all questions in chat and send you. You can see and choose an answer also. Yeah, I think if the host can choose and ask, I'll be okay, because I'll be having difficulty in reading. I'm not so savvy. The host can see and ask question. I will answer the question. Yes, Prabhu. Okay, Prabhuji, thank you so much. Jai Jai Sri Radhe Shyam. His guest Vishnu Prabhu ki jai. And also send the YouTube link also, please. जय कुंज बिहारी जी महाराज की जय हो, जय राधा रानी की जय हो, जय राधे कुंज बिहारी जी की जय हो महाराज. Thank you so much. Thank you for this kindness.